is my YouTube channel, the IELTS Insider, and here this is a simple chart in which we will be talking about the 3 different letters format in IELTS task 1 of general training. So there are 3 types of letter: formal letter, semi-formal letter and informal letter. We can compare, and with this we can understand it more better. So formal letters are written to an organization or organizer, editor, magazine, authorities or a manager. So basically to a person maybe whom you may know and the other person don't know you. So आप उनको जानते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप भी उन्हें बस जानते ही हो, ठीक है. सो मे बी आपको उनका जेंडर भी नहीं मालूम. सो वी विल स्टार्ट विद द लेटर डियर सर और मैडम. In semi-formal letter, we write this letter to acquaintances. Means that person knows us, we know that person, but कोई relationship नहीं है, ठीक है, कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है, हम बस सिर्फ जानते हैं. जैसे कोलीग्स को, मैनेजर्स को, प्रोफेसर को, अपने डॉक्टर को, लैंडलॉर्ड को, नेबर को, कोलीग्स को, ठीक है. सो for all these people we will write semi-formal letter. Informal letter is written to friends, families and relatives. Formal, semi-formal are almost similar, but there are few differences which we will compare. So in semi-formal letter we will write this as, we will start the letter with dear Mr. Sinha and then comma. We have to address that person as Mr. So if the person is doctor, we can write as Dr. Sinha. So here surname needs to be written, no first name, only surname. And in case of informal letter we need to write the first word, first name. Basically if the name is John Sinha, we can write John. So, and also try to write English names instead of your local native languages name. So this is English names are more preferable. So after writing this dear sir or madam, the first thing that we write is a statement of purpose, which is also said as SOP, that why we are writing the letter. So that this letter is being written in order to apologize, this letter is being written in order to show my dissatisfaction towards whatever the topic is. So we will only write why we are writing the letter, otherwise we need not to mention anything else here. Same with the semi-formal letter. And in introduction we first will ask whether the person is good, means वो तबीयत उसकी ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा, हमें फ्रेंड को लिख रहे हैं. जैसे होप यू आर इन रेडियंट हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स. सो पहले हाल चाल पूछेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, ठीक है, ऐसे करके. उसके बाद BP1, BP2 एंड BP3, ये हमारा तीनों जो पैराग्राफ होते हैं बेसिकली कैसे आएंगे. जो बुलेट पॉइंट फर्स्ट में पूछा है वो BP1 में लिखेंगे, जो बुलेट पॉइंट 2 में पूछा है वो BP2 में, एंड जो बुलेट पॉइंट 3 में पूछा है वो BP3 में हम उसका आंसर लिखेंगे. एंड मेक श्योर कि आप वही लिखो जो पूछा गया है, अननेसेसरली मत लिखो, ठीक है. एंड ये जो है तीनों लेटर्स में एज इट इज़ ही फॉलो होगा स्ट्रक्चर. मेक वन थिंग क्लियर इन दिस स्ट्रक्चर कि after writing dear Mr. Sinha whatever, you have to leave one line. After writing introduction you have to leave one line. After writing body paragraph 1 you have to leave one line, okay. And then after writing body paragraph 2 again leave one line, and then after writing body paragraph 3 again leave one line in each letter, okay. So in the end we will write a one line closing line. We will close our letter with one line and then leave one line. And then in case of formal letter we can write yours faithfully, your full name should be written with the surname, like for example Shubdeep Singh Sidhu, ठीक है. So in case of semi-formal letter, yours sincerely Shubdeep Singh Sidhu, again full name should be written. But yes, in case of formal letter we will only write faithfully. And in case of semi-formal letter we can write sincerely, yours sincerely, or we can also use yours honestly. Otherwise
Do not write here in case of semi-formal faithfully. It will be wrong. Okay. In case of informal letter, you can write yours lovingly, yours friend, yours son, yours daughter, whatever. If you are writing to your parent, okay, mother or father. So here you will write only your first name. No surname, no formality should be there, only first name. So in the next part we will discuss about the do's and don'ts of formal and semi formal letter. मतलब क्या हमें करना है एंड क्या हमें अवॉइड करना है. फर्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है, हमने बिल्कुल भी नहीं करनी. फर्स्ट वन इज अवॉइड ईडियम स्लैंग्स. ये ईडियम स्लैंग्स हमारी जो राइटिंग है इसको इनफॉर्मल बनाएंगे, बट लेटर तो हमने फॉर्मल सेमी फॉर्मल लिखनी है. So we will not write the words such as light as feather, take a chill pill, on a cloud nine, got a bay, ये. So ये सारे words ना informal है. ये हम जैसे देखो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं या अपने मदर के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, तब हम यूज़ करते सही लगते हैं. बट फॉर्मल लेटर में तो हम वो हमारा कोई भाई नहीं है, ठीक है, मैनेजर को थोड़ी ऐसे कह सकते हैं. तो ये जो वर्ड्स है ईडियम स्लैंग्स नहीं यूज़ करनी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, जो वर्ड हम कंप्लीट नहीं लिखते, जैसे सी एंड कांट कर दिया कैन नॉट को. सो ये हमने सेमी फॉर्मल फॉर्मल लेटर में ट्राई करने हैं, अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज को इनफॉर्मल बनाएंगे. इंस्टेड वी कैन यूज कंप्लीट वर्ड, कैन नॉट, आई वुड नॉट, ऐसे लिख दो, ठीक है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख के हम अपनी क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं. ये काफ़ी सिंपल से है रूल्स, बट इनको फॉलो करना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है. थर्ड वन इज़ अवॉइड यूजिंग इनफॉर्मल वर्ड्स. इनफॉर्मल वर्ड जैसे कि किड्स, फोक्स. सो किड्स की जगह लिखो चिल्ड्रन, मासिस, ठीक है. ये जो वर्ड्स हम अगर लिखें तो हमारी इनफॉर्मल टोन हो जाएगी लेटर की, जो कि हमारे सीधा अफेक्ट करेगी बैंड स्कोर पे, ठीक है, जो हम राइटिंग जो भी लिख रहे, चाहे राइटिंग टास्क 1 है चाहे राइटिंग टास्क 2 है. नेक्स्ट इज नंबर्स जो है ट्राई करना है कि नहीं करने, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, इनका यूज़ करना. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ट्राई टू नॉट राइट. जैसे कि देखो फॉरेस्ट कवर्स 1035 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ऐसे कहते हैं लार्ज एरिया, सिंपली क्लियर. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ऑर्डर्स एंड कमांड. ये देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये तो बड़ी ज़्यादा ही गलती है अगर हम यूज़ करते हैं लेटर्स में, स्पेशली फॉर्मल इनफॉर्मल, स्पेशली फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल में. देखो हम मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को लिख रहे हैं, उसको हम कमांड थोड़ी ना दे सकते हैं, ऑर्डर थोड़ी ना दे सकते हैं. ये अगर हम ऐसे लैंग्वेज लिखते हैं, आई वॉन्ट दिस, ठीक है, आई वॉन्ट द प्ले ग्राउंड नॉट टू बी रिप्लेस्ड बाय द मॉल, ऐसे कुछ भी लिखेंगे, ऐसे हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं. अगर ऐसे करेंगे तो वो एक डिसरिस्पेक्ट होगी, ठीक है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट अ फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी नीड टू डू in order to write better letter. So do's means हमें करना क्या है लेटर में. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पर्सन को यूज करो, पीपल, मासेस, इंडिविजुअल्स, दे, वन कैन, ठीक है. यू योर को ट्राई करो, ऐसे मत लिखो, सामने वाले को पॉइंट आउट नहीं करना हमने. एंड नेक्स्ट इज पैसिव वॉइसेस. अगर आप जितने ज़्यादा लिखोगे लेटर में उतनी ज़्यादा अपनी राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी. जैसे कि देखो एक एग्जांपल है, इट वुड बी अप्रिशिएटेड, ये सराहनीय होगा, इफ़ द अरेंजमेंट्स कुड बी मेड बिफोर द ट्रायल पीरियड. अगर ट्रायल पीरियड के पहले जो अरेंजमेंट्स हो जाएं. ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेसेसरी एक्शंस शुड बी टेकन बाय मैनेजमेंट एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है. सो ये मैंने तोड़ के नहीं लिखे, अपने ब्रोकन सेंटेंसेस नहीं लिखे, अपना प्रॉपर कंप्लीट एक ही बात में, एक ही सेंटेंस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी. So passive voices should be preferable to use in writing formal and semi-formal letters. Last third point which we have to do in our writing is long sentences लिखने हैं, complex sentences लिखनी हैं, तभी तो हमारी writing formal बनेगी. जैसे कि देखो the course that I opted for
वो सपोज टू हैव प्रैक्टिकल लेसन्स इन्वॉल्व। उसमें जैसे मैंने कोर्स ऑप्ट किया था, ज्वाइन किया था, उसमें प्रैक्टिकल लेसन्स होने थे। हाउएवर द इंस्ट्रक्टर्स आर मेयरली फोकसिंग ऑन दिस दैट एस्पेक्ट। जो मेरे टीचर है वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, पहलू को देख ही नहीं रहे, ठीक है, इतना फोकस नहीं कर रहे। सो ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस, देखो लॉन्ग भी है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, जैसे एक इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट क्लोज है इसमें। सो ये हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर में डूज एंड डोंट। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। पहले ये ना थोड़ा ऑपोजिट ही आएगा सेमी फॉर्मल फॉर्मल के अकॉर्डिंग। देखो इसमें इनफॉर्मल है, मतलब पर्सनल टच होना चाहिए, ये पर्सनल लेटर्स ही होते हैं बेसिकली। सो इसमें ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि पर्सनल टच आई लेटर्स में। एंड वैसे भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जान पहचान वाले को ही तो लिख रहे हैं, फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव्स को। सो शॉर्ट सेंटेंसेस हो, अगर सिंपल सेंटेंसेस हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आई थॉट द कोर्स वुड हैव प्रैक्टिकल लेसन्स इन्वॉल्व्ड, टू माई सरप्राइज देयर वॉज नो सच थिंग। ठीक है, सो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस सिंपल सिंपल समझने वाले वो हम यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि आपका जिससे बात कर रहे हो वो उससे कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलनी है अपनी, ठीक है। सो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन तीनों यूज़ कर सकते हो। फोर्थ इज अगर आप डोंट, कांट, कुड नॉट, ये होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, अगर आप ये यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफॉर्मल लेटर ही है। जैसे आई एम ग्लैड दैट यू हैव चोजन टू गो फर्दर विद MBA एज यू वांटेड टू। ठीक है, सो ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं बेसिकली हमने यूज़ करनी। फॉर्मल लैंग्वेज हम कैसे, अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसे करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन यूज़ करके। फोर्थ एंड देन फिफ्थ वन इज चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी इनफॉर्मल, क्योंकि पर्सनल टच तभी आएगा हमारे लेटर में। नंबर्स जो हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम 100% श्योर यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड टू पैक योर बिलोंगिंग्स येट। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है, 100% श्योर हूँ भी, अभी तक तूने अपनी पैकिंग भी नहीं की। सो ये नंबर्स देखो इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इन फॉर्मल लेटर में था कि नंबर नहीं यूज़ करने। ये सारे जो हैं रूल्स इसमें ऑपोजिट हैं। एक्टिव वॉइसेस यूज़ करनी है एंड सेमी एंड फॉर्मल लेटर में क्या था कि पैसिव वॉइसेस यूज़ करनी है। सो इसमें हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, जैसे कि शैल वी प्लान एन आउट गोइंग दिस वीकेंड। हम सीधा उसको बोल रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। I'll reach at 7 o'clock for receiving you at the station. So कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, सीधा आप ऑर्डर ही दे रहे हो उसको। ये हम कर सकते हैं किसमें, इनफॉर्मल लेटर में। So this was today's video. If you like my content, please subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider, for more videos related to IELTS. Have a nice day. Bye bye. Tata.